Hello students, once again welcome in science class. Today in this video we are going to start the second part of our ongoing chapter, which is acid, bases and salt. As in our first part we have done the introduction of acids, bases and salt, and we got there one thing that acids turns blue litmus into red, bases turns red litmus into blue. So what is that litmus? So as I said to you that litmus is an indicator. So in this video we are going to start about indicators, or we will study indicators in detail. What are indicators? So indicators are those substances which help us to identify that unknown substances or to identify the nature of unknown substances, whether the given substance is acid, base or any neutral substance. That's why indicators are very important. Indicators यानी सूचक जो कि हमें ये प्रदर्शित करते हैं कि जो कोई सबस्टेंस हमारे पास है जिसका हमें प्रकृति मालूम नहीं है, नेचर मालूम नहीं है, हम उसकी नेचर का कैसे पता लगाएं कि ये एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है. तो आज बात करते हैं हम इंडिकेटर्स पर. इंडिकेटर्स इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंडिकेटर अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एन एसिड और अ बेस इज एडेड इनटू इट. यानी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक डाई है जिसका सोर्स अलग अलग सबस्टेंसेस होते हैं. डाई यानी एक ऐसा कलर जो कि जब उसमें कोई एसिड या बेस की कुछ बूंद उसमें डाली जाती है तो वो इंडिकेटर अपना कलर परिवर्तित कर देता है. तो ऐसे जो सबस्टेंसेस होते हैं, ऐसा जो पदार्थ होता है, उनको इंडिकेटर कहा जाता है. So this is the definition: a dye that changes its color when an acid or a base is added into it. यानी कोई अम्ल और क्षार को जब इंडिकेटर पर डाला जाता है थोड़ी सी मात्रा में, तो वो इंडिकेटर वो सूचक अपना रंग प्रदर्शित करके बताता है कि ये सबस्टेंस एसिड है या बेस है. एसिड डालने पर उसका रंग अलग होता है और बेस डालने पर उसका रंग अलग होता है. इंडिकेटर्स एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमें पता है कि टेस्ट और टच सब्सटेंस को क्लासिफाई करने का एक स्टैंडर्डाइज मैनर नहीं है, क्योंकि जो सब्सटेंसेस हैं हमें नहीं पता वो कितने खतरनाक हो सकते हैं. तो इंडिकेटर्स किसी भी तरीके के सब्सटेंस को की नेचर को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है. बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, यानी इंडिकेटर्स के प्रकार की. तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. इंडिकेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. पहली कैटेगरी है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरी कैटेगरी है सिंथेटिक इंडिकेटर. यानी नेचुरल इंडिकेटर, पहला जो है नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक. नेचुरल इंडिकेटर्स आर दो सबस्टेंसेस which are present in natural substances like plants or products of plants. जो हमें plants या plant products से मिलते हैं, ऐसे जो indicators हैं उनको कहा जाता है natural indicators. तो natural occurring indicators are called natural indicators. इसके एग्जांपल है आपके litmus, china rose and turmeric. These are some example of natural indicators. Litmus, china rose and turmeric. On the other hand, if you talk about a synthetic indicator, अगर हम synthetic indicators की बात करते हैं तो synthetic indicators are those indicators which are not naturally occurring. Those are prepared in factories or labs. So that's why they are synthetic. इसका एग्जांपल आता है आपका phenolphthalein is one of the important example of synthetic indicators. Let's talk about natural indicators, how they are useful to find out the nature of a substance. कि जो natural indicator है litmus, china rose और turmeric, वो कैसे बताते हैं कि कोई substance acid है या base है. तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. पहला जो natural indicator है that is litmus. Litmus is a dye which is extracted from a symbiotic relationship of algae and fungi. That relationship is called lichen. जैसे कि आपको पता है lichen algae और fungi का एक symbiotic relationship वाला ऑर्गेनिज्म है, और जो लिटमस का सोर्स वो ही lichen है. तो the source of litmus is lichen. यानी lichen वो जो symbiotic relationship है between the
fungi and algae. That symbiotic relationship lichen is the source of litmus and its natural color is purple. जो लिटमस जो इंडिकेटर है लाइकेन जिससे प्राप्त होने वाला उसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है. लिटमस इंडिकेटर सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल भी होता है. इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. जब हम इस एक्सट्रैक्ट को जो कि लाइकेन से मिलता है उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो जो इंडिकेटर बनता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है. इसके अलावा ये जो लिटमस इंडिकेटर है ये पेपर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. So litmus indicator is present in solution form as well as in paper form. When it is mixed with water, it is in solution form and there are paper form is also available. जो natural color है litmus का that is purple, but there are two types of litmus paper are there. One is red and the other one is blue. So natural जो color है litmus solution का वो purple होता है, लेकिन जो इसके दो अलग फॉर्म जो अवेलेबल होती है एक रेड लिटमस पेपर की फॉर्म में और ब्लू लिटमस पेपर में ये प्रेजेंट होता है. दो फॉर्म में पर्पल के अलावा ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इन्हीं दो फॉर्म्स की हेल्प से हम किसी सब्सटेंस की जो नेचर है उसको फाइंड आउट करते हैं. सो टू रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में जनरली लिटमस प्रेजेंट होता है और इस सॉल्यूशन फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है. Now, how acid and base reacts with these shades of litmus? So, when acid is added into the litmus paper, what happens? And when base is added into the litmus paper, what happens? As we know, two shades of litmus paper are there. One is red and another one is blue. So, first thing, acid turns blue litmus to red. अगर हम जिस सब्सटेंस को चेक कर रहे हैं इफ दैट इज एसिड, अगर वो अम्ल है और जो हमारे पास पेपर लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का है तो उस समय एसिड ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करेगा? रेड लिटमस में चेंज करता है. सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. और अगर हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो ब्लू नहीं बल्कि कौन सा है? रेड ही है. तो उस समय नो चेंज. सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड इफ लिटमस पेपर इज रेड at that time there will be no change in the litmus paper. So this is the first observation which we are going to make, that acid turns blue litmus to red. यानी जो एसिड है जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास ये लिटमस पेपर है और इसका कलर क्या है? ब्लू है और हमें नहीं मालूम जिस सब्सटेंस को हम चेक कर रहे हैं कि उसकी प्रकृति क्या है. तो जब हम उसको इस पर ड्रॉप डालेंगे उसको इस स्ट्रिप को या तो उसमें डुबाएंगे या इस पर उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका रंग ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा अगर वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है. सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. और अगर ये ब्लू कलर की जगह रेड कलर का ही होता और सब्सटेंस एसिड होता तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये रेड कलर का ही होता. सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. ये पहली ऑब्जर्वेशन है अबाउट लिटमस पेपर. Now, what happened with base? Base turns red litmus to blue. Red litmus to blue. जो bases होते हैं वो red litmus को blue litmus में change कर देते हैं. यानी जब हमारे पास अगर हमारे पास जो पेपर है which is red in color और जिस सब्सटेंस को हमने चेक करा अगर वो बेस होगा तो वो इस रेड को ब्लू में चेंज कर देगा. यानी इसको हमने जब उस एसिडिक सब्सटेंस में डिप करेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा. तो वो इंडिकेट करेगा कि ये बेस है. सो बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. और अगर वो ब्लू लिटमस होता है, अगर ये रेड की जगह क्या होता है? ब्लू, तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. नो चेंज. सो एज बेस टर्न्स red litmus to blue and if the red litmus is blue that time there will be no change. So there are two observations about
litmus paper. Acid turns blue litmus to red and bases turns red litmus to blue. This is about litmus indicator. Now the second indicator is China rose. China rose जो indicator है, that is also a very useful indicator. As the name suggests, China rose. China rose एक प्लांट है जिसको कि हिंदी में गुड़हल कहा जाता है. तो चाइना रोज. China rose indicator is obtained from flower of China rose. China rose के फ्लावर से यानी गुड़हल के फ्लावर से चाइना रोज इंडिकेटर प्राप्त किया जाता है. चाइना रोज का जो फ्लावर्स होता है उसको वाटर के साथ मिक्स करके ग्राइंड करके जो सॉल्यूशन फिल्टर करके बनता है उस सॉल्यूशन को कहा जाता है चाइना रोज सॉल्यूशन. इट्स कलर इज लाइट पिंक. चाइना रोज सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर का होता है. नाउ हाउ इट बिहेव्स व्हेन इट केम इन कांटेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस. सो इफ यू कैन लाइक अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में चाइना रोज सॉल्यूशन लेते हैं, ये चाइना रोज सॉल्यूशन है और इसका कलर पिंक है. सो व्हेन acid is added into this, तो एसिड की कुछ बूंदे डालने पर जो चाइना रोज सॉल्यूशन है वो पिंक से डीप पिंक हो जाता है यानी मजेंटा. इट चेंजेस इनटू डीप पिंक और जिसको हम क्या बोलते हैं मजेंटा भी कहते हैं. तो एसिड टर्न्स चाइना रोज फ्रॉम पिंक टू मजेंटा. जो एसिड है वो जब चाइना रोज सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो वो डीप पिंक में यानी मजेंटा में चेंज हो जाता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन सेम थिंग इज डन विद द केस ऑफ बेस, अगर ये चाइना रोज इंडिकेटर जो कि पिंक कलर का है उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस मिलाया जाता है तो ये इट चेंज इनटू द ग्रीन. सो अगर हम इसके ऑब्जर्वेशन बनाएं, एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर फ्रॉम पिंक टू डीप पिंक और मजेंटा. एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर फ्रॉम पिंक टू डीप पिंक एंड बेसिस टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर फ्रॉम पिंक टू ग्रीन. सो दीज two observation we can made about the China rose indicator. So when acid is added in China rose indicator, its color from pink changes to the deep pink or magenta, and when base is added into the China rose indicator, its color changes from pink to green. So in this way China rose is helpful to identify whether a substance is acidic or basic. थर्ड जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है that is turmeric. Third natural indicator is turmeric. The source of turmeric indicator is a plant which is called haldi in Hindi. हिंदी में उस पौधे का नाम टर्मरिक, जैसा आपको पता है हल्दी का एक पौधा होता है उससे टर्मरिक इंडिकेटर प्राप्त किया जाता है. हल्दी प्लांट का जो पार्ट होता है which is present under the soil यानी जो मिट्टी के अंदर उगने वाला जो भाग है उसका, जिसको कि जनरली साइंस की लैंग्वेज में हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, that is underground stem part of that plant. So the source of turmeric is underground stem of turmeric plant यानी हल्दी के पौधे का जो अंडरग्राउंड स्टेम है उससे हमें टर्मरिक इंडिकेटर प्राप्त होता है. and it is generally in powder form. The powder form में ये होता है and when it is added with water, इस पाउडर को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो इसका एक सॉल्यूशन मिलता है. that solution is turmeric solution, and this turmeric indicator is also present in paper form में भी ये present होता है. so turmeric indicator जो टर्मरिक प्लांट का जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करके जब उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. और इसके अलावा टर्मरिक इंडिकेटर पेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. और इसका जो नेचुरल शेड होता है, नेचुरल कलर होता है, ये येलो कलर का होता है. तो बोथ द फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म और पेपर फॉर्म आर येलो इन कलर. नाउ हाउ द कलर ऑफ टर्मरिक changes when they came in contact of acid and bases.
in टर्मरिक कलर। जो एसिड होता है वो टर्मरिक के कलर में कोई चेंज नहीं आता है, यानी इट रिमेन्स येलो। मतलब ये क्या रहता है? इट रिमेन्स येलो, यह पीला ही रहता है। एसिड डू नॉट मेक्स एनी चेंज इन टर्मरिक कलर। जब टर्मरिक सॉल्यूशन में, वेदर पेपर फॉर्म या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में, जब हम उसमें एसिड सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो पीला ही रहता है। बेसिस, लेट्स टॉक अबाउट हाउ बेस रिएक्ट विद इट। बेसिस और बेस चेंज टर्मरिक फ्रॉम येलो टू रेड। येलो टू, यानी जो बेस होते हैं, जब बेस को टर्मरिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, टर्मरिक पेपर में जो येलो कलर का उसमें ऐड किया जाता है, तो जो टर्मरिक का कलर है वो येलो से रेड हो जाता है। तो बेसिस चेंज टर्मरिक फ्रॉम येलो टू रेड, and in case of acid it remains yellow, there is no change in color. So in this way turmeric is helpful to find out the nature of the given substance. तो इस तरीके से ये तीनों जो इंडिकेटर, लिटमस, चाइना और टर्मरिक, ये अपने शेड्स को चेंज करके, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आते हैं और बेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो अपने शेड्स को अपने कलर में परिवर्तन करके इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे पास अननोन सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है। जो दूसरी कैटेगरी है इंडिकेटर्स की, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उसमें जो एग्जांपल है उसका दैट इज फिनोल्फ्थलीन। सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस ये नहीं होते हैं। फिनोल्फ्थलीन उसका एक एग्जांपल है इन हाउ इट इज यूजफुल टू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। यानी फिनोल्फ्थलीन किस तरीके से हमें किसी सब्सटेंस का प्रकृति जानने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम फिनोल्फ्थलीन यानी जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, एसिड डू नॉट मेक एनी चेंज इन फिनोल्फ्थलीन, यानी जब एसिड को फिनोल्फ्थलीन के साथ मिलाया जाता है तो फिनोल्फ्थलीन में कोई चेंज नहीं आता है, इट रिमेन्स कलरलेस। एसिड डू नॉट मेक एनी चेंज in it remains colorless। जब एसिड होता है वो फिनोल्फ्थलीन में मिलाया जाता है तो उस समय फिनोल्फ्थलीन के कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो कलरलेस बना रहता है। बट बेस जो होते हैं वो फिनोल्फ्थलीन में चेंज आता है और बेस टर्न फिनोल्फ्थलीन टू पिंक। जो बेस होते हैं, when base is added into phenolphthalein, it change phenolphthalein into pink. So इस तरीके से दो ऑब्जर्वेशन हम एसिड और बेस के केस में करते हैं। When acid came in contact of phenolphthalein, it do not make any change. उस समय इसमें कोई अंतर नहीं आता है, it remains colorless. But when base came in contact of phenolphthalein, it changed phenolphthalein into पिंक शेड और ये फिनोल्फ्थलीन को पिंक कलर में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स हैं ये यूजफुल है, इनमें से किसी भी एक इंडिकेटर्स को यूज किया जा सकता है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक इंडिकेटर समझ आया होगा, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर या फिर मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका